So hi guys, good morning. Today is our webinar session is on AWS and DevOps. What is the purpose of AWS and DevOps as per the organizational point of view? Basically, you know very well that in this organization, in the market, there are few opportunities you can see here in the market, like they are looking for candidate who has a very strong knowledge in the cloud, either in AWS, Azure, GCP. There are few more clouds. Other than, they are looking for a candidate who has a very strong knowledge in the DevOps automation tools, some sort of automation in the cloud environment, and some sort of automation they are doing in their own premises. So they are looking for that particular candidates. So that's why the candidates who know only the Linux, or who know only the basics system administration skills, or just desktop support skills, so they are looking for the change one. They are looking for the upgradation, so that they can get the hike. And organizational giving you a good hike for this particular cloud and the DevOps. So if you are basically start working learning the AWS and DevOps, then in future you will get a good hike in the organization. In fact, let's take an example. If your current CTC is suppose 8, and just you have done some sort of AWS and DevOps, and you crack the interview, so HR will give you ready to give you more than 15, 18, 19. Your basic package is suppose 8, so HR will ready to give you about 8 to 9. HR will ready to give you about 8 to 9. That is the advantage of the AWS and DevOps knowledge, because it is booming the market. So it is completely new, or a working professional. You know that in the whatever the education you are done, either you are from the IT background, or you have done some sort of engineering, or some sort of any BBA, BCom, not in the IT background. So that it is again possible for that people also, they are learn this particular AWS and DevOps from scratch. Why? Just because to understand the purpose of AWS and DevOps, there is no necessary requirement to learn of any programming language, or there is no any other requirement that you must be from the IT background. There is no requirement. You are totally from the non-IT background is okay for them. In fact, in my organization, in fact, in so many organizations, whatever the people are working in this particular field since last 5 years, 10 years, most 70% are from the non-IT background, because they are ready to learn everything from scratch. So here in this particular webinar, I just want to tell you that whenever you want to move your career, whenever you want to start your career with the particular IT background, so there are few opportunities that you are interested. Few of the candidates wants that they don't have a knowledge of any programming language, or they don't want to do any type of programming language. Then what sort of courses is sufficient for them? So for that particular course, I just want to suggest them that AWS and DevOps is the best platform for them to start their working, because in the DevOps there are so many tools. The candidate have to understand the working, understand and the troubleshooting skills of that particular tool, so that how you can use that particular tools, how you can understand. This is just an overview, then we can start from scratch, no worries. Then how the tools are working, then again how the cloud is working. What is cloud? What is cloud computing? What type of clouds are there, like infrastructure cloud, platform cloud, software as a service cloud? So these are the different types of cloud infrastructure. So what type of cloud is there? So again, this is the it's just an introduction of the cloud computing. Then after, let's say you just start working on AWS, which is called as Amazon Web Service. So Amazon Web Service, whenever you are start working with the learning with the Amazon Web Service, then you will slowly learn the services one by one. What is the use of services, and how we can use that services in the real time in the organization. So that is the things we can understand here in this particular webinar. As well as, if you are interested for this course, then definitely you will be learn these particular skills in depth.
Next, so Coder, what actually Coder will give you, what is the purpose of this webinar? So the purpose of this webinar is to trying to tell you why this particular AWS, that means Amazon Web Services, and the second one is DevOps, is actually required in the market. Okay, so let's take an example. I just want to tell you diagrammatically so that you will be understand how the why the market is looking for this some sort of the skills. Let's take an example. There is an XYZ environment. There is an there is an XYZ organization. Let's say there is a startup organization or some middle organization, and this is the data center of this and particular organization. Let's take an example. This is the data center of this particular organization. That means organization suppose never used any cloud service, never used any automation tool like DevOps. Suppose organization is totally working on the manual task. Manual task means organization have own data center. Data center, few of you know about the data center. Data center means what? They have their own setups of servers. Bunch of servers are there, and some sort of applications, development applications are deployed, are installed in their own systems. So they have their setup of their own systems, and in this particular data center, let's say they have few many servers. They have few many servers which are deployed, which are installed in their own machine. Okay, which are deployed, that means which are installed in their own machine. Okay, so to handle this sort of scenarios, handle this sort of scenarios, no worries, I can tell you in Hindi as well as English, no worries. So इसको हैंडल करने के लिए कैसे सिनेरियो होगा हम लोगों का, हाउ वी कैन हैंडल इट. सो इसको हैंडल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर अ कैंडिडेट. दे वांट अ कैंडिडेट. उनको ऐसा कैंडिडेट चाहिए होगा जो मैनुअल काम कर सके. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास 15,000 सर्वर्स है. हाउ मेनी सर्वर्स? 15,000 सर्वर्स. ओके, एंड सपोज अगर 15,000 सर्वर्स को हैंडल करने के लिए मैं सिर्फ 5 लोग रखता हूँ. Suppose organization keep only 5 people to handle this particular or this particular data center, then how it is possible for them to handle. अगर सब कुछ मैन्युअली करना है, लेट्स से कि अगर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर उन लोगों को काम दिया है कि भाई वॉट एवर द सर्वर्स यू हैव इन दैट सर्वर्स, आप उसके अंदर पूरा के पूरा जावा का अपग्रेडेशन कर दो, पूरा के पूरा उसको पैचिंग कर दो, वॉट एवर दे वांट टू परफॉर्म. ये पूरा मैनुअल काम उनको करने को बोला है. लेट्स से, सो हाउ इज इट पॉसिबल फॉर ओनली 5 कैंडिडेट्स टू डू सम सॉर्ट ऑफ ऑटोमेशन और सम सॉर्ट ऑफ अपग्रेडेशन एंड इंस्टॉलेशन. उनको अपग्रेडेशन और इंस्टॉलेशन करने के लिए 5 लोगों को 15,000 सर्वर्स में कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि 1 बाय 1 सर्वर में वो लोग लॉग इन करेंगे, एंड लॉग इन करके वो 1 बाय 1 करके सिस्टम के अंदर सारी बेसिक एक्टिविटी करेंगे. फ्यू ऑफ यू लाइक आर फ्रॉम द सपोर्ट बैकग्राउंड, सो आप लोगों को पता है कि कितना मैनुअल काम होता है, वर्कलोड भी बहुत होता है, काम भी बहुत करना होता है. सो इसीलिए हम लोग क्लाउड एंड ऑटोमेशन पे फोकस करते हैं, ताकि ये काम हमसे ज़्यादा सिस्टम कर सके, हम लोगों से ज़्यादा ये काम सिस्टम कर सके. दैट्स वाई ऑर्गेनाइजेशन लुक फॉर अ कैंडिडेट दे हैव द स्किल्स ऑफ द ऑटोमेशन. अगर आपके पास ऑटोमेशन का स्किल्स नहीं होगा, आपके पास सिर्फ मैनुअल का स्किल्स है, तो कंपनी आपको हायर क्यों करेगी? बिकॉज दे डोंट वांट टू हायर द 100 कैंडिडेट जो आपका पूरा के पूरा सिस्टम के अंदर मैनुअल काम करे. मैनुअल वर्क इज बेसिकली नॉट रिक्वायर्ड. ओके, ऑर्गेनाइजेशन को फुल्ली ऑटोमेशन चाहिए. ये तो अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको ऑटोमेशन के बारे में, फिर इसके बाद में आता हूँ क्लाउड के बारे में. ओके, सो हियर आप देख सकते हो कि अगर 15,000 सर्वर्स है और उसमें अगर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी, यू नो दैट सिक्योरिटी इश्यूज और सिक्योरिटी पैच एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी हम लोगों को वीकली मंथली परफॉर्म करना ही पड़ता है, जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा सिक्योरिटी. ओके, एंड यू नो द व्हाट वी कैन से दैट कि सिक्योरिटी का डिमांड मार्केट, सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट होता है वो, करेक्ट. सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस कितना है ये आप लोगों को भी काफ़ी अच्छे से पता है. डेटा आपका होता है, कस्टमर्स का डेटा होता है, उसके बाद में उन लोगों का अगर कोई वो ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आजकल देखते हो आप कि काफ़ी सारे सर्वर्स के ऊपर
अभी अभी तो रिमूव कर दिया है, लेकिन पहले होता था कि काफी सारे सर्वर्स के ऊपर कस्टमर्स के कुछ एटलीस्ट कार्ड नंबर तो भी सेव होते थे, तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता था। इसके लिए हम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी एक्टिविटी परफॉर्म करना ही होता है। तो मैनुअल इज इम्पॉसिबल फॉर फ्यू कैंडिडेट्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन 100 से 200 लोगों को हायर भी करता है यही काम करने के लिए, तो उसको इतना ज्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आप बेसिक सैलरी, अगर एक्सपीरियंस पर्सन की 40,000 भी अगर आप पकड़ते हो और कम से कम ऐसे 100 लोग भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 40,000 से 100 के लिए कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन को कितना पे करना पड़ता है। बराबर है, यही मैनुअल काम करने में। अगेन सेकंड थिंग, अगर वो मैनुअल कर रहे हैं तो 15,000 सर्वर्स को भी अगर 100 लोग करते हैं तो यू नो कि एक दिन में कितना पॉसिबिलिटी होता है। 15,000 सर्वर्स को कंप्लीट करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा। दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हम लोगों को टाइम भी कंज्यूम करना है, और सेकंड थिंग उसको तुरंत उसको पैचिंग अपग्रेडेशन जो भी है वो भी अच्छे से करना है। तो सब कुछ ये एक्टिविटी परफॉर्म करना होता है। बट बेसिकली यू नो कि दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर आपको, इन दिस टाइप ऑफ आर्किटेक्चर यू विल फेस सम सॉर्ट ऑफ डिले भी फेस करना पड़ता था, रिसोर्सेज भी काफी लगते थे, और इसमें फिर छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स आते थे, कभी कोई सर्वर चल रहा है, कभी कोई कस्टमर बोलता है कि अभी मत करो, अभी हम लोग का ये काम चल रहा है, या फिर ऐसा कुछ करो कि हम रात में 11 बजे की बात करना, कोई कहता है कि मेरे 4 बजे तक के मेरा ये काम चल रहा है, 4 बजे के बाद देखो। तो ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज आते हैं, तो ये इश्यूज को तो हम लोगों को हैंडल करना ही होता है। इसके अलावा हम लोग इसको अभी ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कर सकते हैं, ये तो हुआ कंप्लीट वर्क, ये तो हुआ कंप्लीट मैनुअल वर्क। सो अभी हम इसको ऑटोमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर आपके पास में, अगर आपके इफ यू हैव द स्किल्स ऑफ डेवऑप्स, ओके, लेट्स से कि अगर आप 15,000 सर्वर्स को आप अपग्रेड कर रहे हो, पैच कर रहे हो, ओके, नाउ इफ यू हैव सपोज के, और आपके पास में डेवऑप्स का स्किल्स है, ओके, जस्ट फॉरगेट अबाउट क्लाउड राइट नाउ, if you have the knowledge of the DevOps, okay, so DevOps के knowledge यहाँ पे कैसे काम आता है, you know DevOps is generally it is the combination of development plus operational, डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशनल, दैट मीन्स कि आपको डेवलपमेंट कुछ करना पड़ेगा ये नहीं होता है, ओके, सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आप एक बार कर लो, उसके बाद में अगर आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करना है तो जैसा एक्टिविटी परफॉर्म करना है उस हिसाब से हम लोगों को एक स्क्रिप्टेड पाइपलाइन बोलो या फिर कोई लिटिल कॉन्फ़िगरेशन बोलो, ये एक बार एक सिस्टम, पर्टिकुलर एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जहां से हम लोगों के सारे ये सर्वर्स कहा क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। लेट्स से अगर ये मेरा सपोज इट्स माय सेंट्रलाइज सिस्टम, ओके, इमेजिन करो, ठीक है, तो यहां से मेरे जितने भी सर्वर्स होंगे सबके सब क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, फाइन, सारे के सारे सर्वर्स मेरे यहाँ से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। सो अगर इफ आई वांट टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी तो मुझे इस सेंट्रलाइज सर्वर पे वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन करना होगा और सीधा सीधा ट्रिगर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद ट्रिगर करना पड़ेगा। तो ये एक बार कॉन्फ़िगरेशन में करता हूँ तो हार्डली मुझे 30 मिनट्स लगते हैं, और जितना ज़्यादा लेंदी काम होगा उतना ज़्यादा लेंदी कॉन्फ़िगरेशन होगा। एक बार एक पर्सन, दो पर्सन मिलके अगर ये कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं एंड देन दे स्टार्ट ट्रिगर, देन ये सिस्टम ऑटोमेटिकली फर्स्ट मशीन वन बाय वन सारे के सारे मशीन में लॉग इन करेगा, और वन बाय वन मशीन में लॉग इन करने के बाद में आपको बता देगा, अब वो एक्टिविटी आपके डिस्प्ले पे शो करेगा कि देखो आई एम डूइंग दिस टास्क, दैट टास्क, टास्क नंबर 1 इज डन ऑन दिस मशीन, टास्क नंबर 2 इज डन। ओनली आपको सिर्फ मॉनिटर करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कि भाई काम चल रहा है, हो रहा है ऑटोमेटिक। सो अब मुझे बताओ कि अगर ये काम अगर एक ऑटोमेशन टूल करता है तो 100 कैंडिडेट्स की जरूरत ऑर्गेनाइजेशन को क्यों होगी, सबको ऑटोमेशन चाहिए होता है। अब नाउ इसका ये मतलब नहीं होता है कि भाई अगर सब ऑटोमेशन आ गया है तो जॉब के वांदे हो जाएगा, इट डजेंट मैटर, बिकॉज डेवऑप्स पे अभी इतना काम है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए 40 से 50 लोगों की टीम लगती है। दैट मीन्स यू नो कि कितना प्रोजेक्ट वास्ट हो रहा है डेवऑप्स का, बिकॉज डेवऑप्स के अंदर जो टूल्स यूज होते हैं उनको हैंडल करने के लिए एक के बस की बात नहीं होती है, बिकॉज ऑटोमेशन में कभी भी कुछ भी इशू होता है। यू नो कि मैनुअल हम कोई काम करते हैं और हमें कोई इशू नजर आता है तो हम तुरंत छोड़ देते हैं उसको। टूल में वैसा नहीं होता है, टूल में हम जो इश्यूज डिस्क्राइब करते हैं, जैसा डिस्क्राइब करते हैं वो वैसे काम करता है। उसके अलावा कुछ अनवांटेड उसको नजर आ गया तो वो उसका काम करते रहेगा, वो आपको बताएगा नहीं, वो स्किप करके, अगर नहीं हो रहा है तो स्किप करके छोड़ देगा कि भाई ये एरर आ गया था। अगर उससे वो
काम पॉसिबल है तो वो काम करके छोड़ेगा, अनवांटेड एरर्स को वो कुछ भी देखेगा भी नहीं। दैट्स वाई हम लोगों को मॉनिटर करने के लिए भी क्या होता है कि डेवॉप्स की कुछ टीम लगती है जो इन सब चीजों पे भी फोकस करे। सो डेवॉप्स इज जस्ट लाइक द ऑटोमेशन, बट सम सॉर्ट ऑफ एडिशनल सम सॉर्ट ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड। जैसे आप डेवॉप्स के टूल्स पढ़ो, वन बाय वन टूल्स अंडरस्टैंड करते जाओ। अभी आप बोलोगे कि हाउ इट इज पॉसिबल टू लर्न द टूल्स। सो बेसिक रिक्वायरमेंट आपका सबसे पहले होता है कि यू मस्ट हैव द स्किल्स ऑफ लिनक्स प्लस शेल स्क्रिप्टिंग। लिनक्स के नॉलेज के बिना ये टूल्स सीखना लिनक्स के नॉलेज के बिना इज इजी, बट अगर टूल्स में कुछ इशू आता है ना, जनरली ऑर्गेनाइजेशन यूज लिनक्स, ओके, यू नो, बिकॉज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, करेक्ट। सो फ्री ऑफ कॉस्ट होने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि अपने टूल्स के ऊपर सबके सब इंस्टॉलेशन जो भी करेगा, सब कुछ करेगा, सॉरी, अपने सिस्टम के ऊपर जो भी इंस्टॉलेशन करेगा डेवऑप्स के टूल्स का, वो करेगा पूरा के पूरा अपना क्या कहते हैं तो लिनक्स के ऊपर। सो इसके लिए अगर टूल्स में कुछ इशू आता है, टूल्स में कुछ एरर आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ लिनक्स, जैसे कोई लिनक्स का कर्नल वर्जन मैच नहीं हो रहा है, या फिर कोई पैकेज का अपग्रेडेशन चाहिए, या फिर वो कोई ज़्यादा ही अपग्रेड हो गया है, उसका वन वर्जन डाउनग्रेड चाहिए, जो भी होता है। सो इसके लिए ये अंडरस्टैंड करने के लिए आपको लिनक्स का पर्सन चाहिए होता है जिसको समझ में आ जाए कि भाई हाँ, दिस इज द एडिशनल वर्जन, कि ये वर्जन हाई हो गया है, इसको मुझे एक डाउनग्रेड करना पड़ेगा, या फिर ये कर्नल वर्जन मैच नहीं हो रहा है, मुझे इसको कर्नल वर्जन को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो उसको पता है कि कर्नल को अपग्रेड करने के लिए क्या कमांड यूज करनी पड़ती है। अगर वही कैंडिडेट के पास कोई लिनक्स का स्किल्स नहीं हो और टूल हैंग हो जाए, तो वो तो घूमता बैठेगा कि क्या हो गया, अभी ये कर्नल का वर्जन में कहाँ से अपग्रेड करते बैठूंगा अगर कर्नल का इशू दे रहा है तो। पहली बात तो ट्रबल शूट करने के लिए, वो इशू आइडेंटिफाई करने के लिए हमको लिनक्स के अंदर कुछ क्वेरी चला के देखनी पड़ेगी, जैसे कि लॉग फाइल देखना है। जैसे अभी एरर क्यों आ रहा है तो सिस्टम में लॉग फाइल चेक करो, तो लिनक्स के अंदर लॉगिन कैसे करना, फिर लॉग फाइल कैसे चेक करना, ऐसे बेसिक एक्टिविटीज के लिए हम लोगों को लिनक्स का स्किल्स भी सबसे पहले रिक्वायर होता है। फुल फ्लेज अगर आपको डेवऑप्स इंजीनियर बनना हो तो यू मस्ट हैव द स्किल्स ऑफ लिनक्स प्लस सम सॉर्ट ऑफ बेसिक ऑटोमेशन इज लाइक शेल स्क्रिप्टिंग, पाइथन स्क्रिप्टिंग, दोनों में से कोई भी एक, दोनों रहेगा तो बहुत ही अच्छा। देन आप स्टार्ट कर सकते हो डेवऑप्स के साथ या फिर पहले क्लाउड के साथ, बट लिनक्स एंड शेल स्क्रिप्टिंग इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग फोकस करते हैं इसके बाद में। देखो, जैसे ही ऑटोमेशन टूल अपना काम शुरू कर देता है, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सिर्फ मॉनिटर करने की जरूरत होती है, बाकी टूल अपना काम पूरी तरह से कर देगा। इस बीच अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ सर्वर को स्कीप करना है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट आ गया कि ये सर्वर को अभी आप स्कीप कर दो, ये नहीं चाहिए, तो आप जैसे चाहो उसको कंट्रोल कर सकते हो। टूल्स के हाथ में, टूल्स अब जैसे चाहते हो आप वैसे कंट्रोल हो सकता है। ओके, इनफैक्ट यू नो कि हम लोग, मैं अभी जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, उस हिसाब से हम लोगों को कोई भी एक्टिविटी को प्लान करना होता था, जैसे एक डिप्लॉयमेंट था हम लोगों का, उसको हम लोगों को करना होता है, तो वो आप इमेजिन करो, उसको अगर मैं आज स्टार्ट करता हूँ ना, वो एक्टिविटी डेवऑप्स के अंदर मैं आज अगर स्टार्ट करता हूँ ना, तो वो 48 आवर्स लेता है पूरा कंप्लीट होने के लिए। मतलब मैं आज स्टार्ट कर दूँ और सीधा 48 आवर्स के बाद देखूंगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ इमेजिन कि वो पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सिर्फ मैं अपने ही प्रोजेक्ट की बात कर रहा था, मेरे ही प्रोजेक्ट में वो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो पूरा डिप्लॉयमेंट वो एक टूल ऑटोमेटिकली जाके कर लेता है। ओके, इसलिए 48 आवर्स लेता है सिस्टम टेक 48 आवर्स के। यही काम मैं मैनुअल अगर करते रहूंगा तो मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा, करेक्ट है। तो ये इसके लिए ऑटोमेशन का रिक्वायरमेंट होता है। अभी ये तो हम लोग डीसी की बात कर रहे हैं, मतलब ऑन प्रीमाइसेस की बात करें। ऑन प्रीमाइसेस के अंदर इश्यूज क्या होते हैं? ऑन प्रीमाइसेस में सबसे पहला स्टार्टअप और मिडिल लेवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इशू होता है इन्वेस्टमेंट। अगर कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन के पास, इफ ऑर्गेनाइजेशन हैव फ्यू क्लाइंट्स ओनली, ओके, और फिर फ्यू क्लाइंट्स के लिए इतना बड़ा इन्वेस्ट करना वो वर्थ इट नहीं होता है, बराबर है। उसके बाद में इन्वेस्ट तो कर लिया, फिर वो हार्डवेयर मैनेजमेंट, बिकॉज डेली बेसिस पे होता ही रहता है कि कभी कोई हार्ड डिस्क अचानक से बंद हो गई, फिर आप कंपनी से एचपी की हार्ड डिस्क है वगैरह जो भी हार्ड डिस्क है,
आप फिर वो वेंडर को बुलाना होता है, चेक करवाना होता है, फिर क्यों हार्ड डिस्क चली गई, तो फिर वो अगर वारंटी में है तो रिप्लेस करके देता है। तो ये जो काम होता है डेटा सेंटर के अंदर, ये बेसिक काम होते हैं। कभी अचानक से कोई वायर जल गई, कभी कोई पावर प्लग जल गया, बराबर है, तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और एक टेक्नीशियन को डेली वहाँ पे 24/7 डेटा सेंटर में रखना ही पड़ता है कि ये एक्टिविटी पे उस कंटिन्यू नजर रखे। अचानक से कोई सर्वर का एक्सेस बंद हो गया तो वो पहले वहाँ पे जाके चेक करेगा डेटा सेंटर में कि कहीं से कोई स्विच खराब तो नहीं हो गया, कहीं से कोई कुछ भी इशू हो सकता है, सिस्टम कोई भी सिस्टम बंद हो गया या किसी सिस्टम की कोई अचानक से रैम जो है वो डिटेक्ट करना बंद हो गई, ये इश्यूज आते हैं बेसिकली। सो इसको अवॉइड तो किया नहीं जा सकता, बट इसको हम लोग इस पर टाइम वेस्ट करने के बजाय अगर ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रैदर देन सेटअप देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम ओन क्लाउड सेटअप करते हैं। अब ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड यूज करते हैं, लेट्स से अगर वो क्लाउड यूज करते हैं, एडब्ल्यूएस यूज कर रहे हैं, ओके। नाउ क्लाउड, अब क्लाउड भी क्या है, क्लाउड इज जस्ट इट्स लाइक अ सिस्टम सेटअप ही है। अमेजॉन वेब सर्विस, तो अमेजॉन के पास ऑलरेडी खुद का एक डेटा सेंटर है जिसमें वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसका काम ही होता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करना। और बैकएंड में उसका हार्ड डिस्क जाता हो, उसका रैम यूटिलाइज, उसका रैम खराब हो जाता है या पावर प्लग खराब हो जाता है, तो उसका कंप्लीटली केयर कौन करता है, अमेजॉन करता है। अमेजॉन सपोज लेट्स से अगर आप एडब्ल्यूएस अमेजॉन का सर्विस यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों को आपके डेटा सिक्योरिटी को लेके, आपके हार्डवेयर को लेके सोचने की जरूरत नहीं होती। देयर इज नो need to worry about this particular cloud, there is no need, sorry, about your security of data। ये सब कुछ, ये जो छोटे छोटे काम होते हैं सब कुछ यही प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ परचेसिंग द इंस्टेड ऑफ डूइंग सम सॉर्ट ऑफ बिग इन्वेस्टमेंट, हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है कि न्यू प्रोजेक्ट दे कैन स्टार्ट ऑन पब्लिक क्लाउड। सो जैसे हम लोग घर लेते हैं ना रेंटल बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, एक तो एक साथ परचेस कर लिया तो वो लाइफ टाइम हमारा हो गया, बराबर है, बट लाइफ टाइम हमें ही मेंटेनेंस करना होता है। सेकंड चीज होती है आपका, आप लीज पे लेते हो, रेंट पे लेते हो, करेक्ट। अगर आप इफ यू आर टेकिंग रेंट, अगर आप रेंट पर लेते हो, तो उससे रिलेटेड जो भी मेंटेनेंस होगा वो जो भी ओनर होगा वो देखेगा। आपको सिर्फ रहने से उसमें मतलब है, बस आपको जो भी उसका आप जो यूज कर रहे हो, तो मंथली बेसिस पे आपको क्या करना होता है, उसका पेमेंट करना होता है। मंथली या ईयरली बेसिस पे आप पेमेंट करते हो। सेम सॉर्ट ऑफ सर्विस विल बी प्रोवाइडेड बाय द एडब्ल्यूएस। वो बोलता है कि आप मेरी सर्विसेज को जितना चाहे उतना यूज करो। उसके पास में कुछ प्लान्स भी होते हैं, आप मंथली बेसिस पे जाना चाहोगे, ईयरली बेसिस पे जाना चाहोगे, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो आप जैसे उसमें यूटिलाइजेशन करोगे वैसा वैसा आपको वो देगा। तो क्लाउड में आपको एडब्ल्यूएस में सीखना क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो लिनक्स के बाद में जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग सीखते हो, देन क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद में फिर आप एडब्ल्यूएस का अंडरस्टैंड करते हो, फिर एडब्ल्यूएस की सर्विसेज को वन बाय वन करके यूज करते हो। फिर आपको वो सर्विस कैसे एक्सेसिबल होगी, जैसे लेट से अगर आपने कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो एडब्ल्यूएस तुरंत आपको वो लिंक दे देता है कि यूज दिस लिंक फॉर योर कस्टमर। सो आपका कस्टमर ये डेटा को एक्सेस कर सकता है। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एडब्ल्यूएस? फर्स्ट एडवांटेज, आपको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की जरूरत नहीं है। जैसे लेट से आज मेरे पास 50 क्लाइंट्स है, 50 क्लाइंट्स के लिए मुझे 50 टेराबाइट यूज करना है हार्ड डिस्क, 50 टेराबाइट। तो आज मैं 50 टेराबाइट के लिए दे रहा हूँ। कुछ महीने के लिए मेरा कस्टमर बोल रहा है वी डोंट वांट सर्विस फ्रॉम यू, आप अपना सिस्टम वहां से निकाल सकते हो, फिर कभी हम लोग आगे देखेंगे। तो कुछ टाइम के लिए जब आप 10-15 सर्वर क्लाइंट्स के लिए अगर आप पूरा के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन करके रख देते हो, तो उतने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको कुछ महीनों के लिए एडब्ल्यूएस को पैसा देने की जरूरत नहीं होती है। ओनली वॉट एवर द सर्विसेज यू आर यूजिंग अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू पे। जो सर्विस आप यूज कर रहे हो बस उसी के लिए आपको पे करना होता है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस यूजिंग एडब्ल्यूएस, इन विच आपको डेटा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। आप एवरीथिंग विल बी हैंडल बाय द एडब्ल्यूएस। अदर देन दैट, आप उसमें कुछ हार्ड डिस्क तो नहीं चली जाएगी, कोई मेमोरी तो लॉस नहीं हो जाएगा, कोई पावर प्लग, कोई केबल तो खराब नहीं हो जाएगी। तो ये सब कुछ केयर करता है अमेजोन। सो आपको इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं होती है, आप बेसिक यूटिलाइजेशन करते रहो, आपको जैसा चाहे वैसा करते रहो। जो लिंक जनरेट होगी वो कस्टमर एक्सेस करेगा। कभी कुछ इशू आता भी है, जैसे सपोज लेट से लिंक क्रिएट हो गया, कस्टमर एक्सेस नहीं कर रहा है, तो कुछ ही सेकंड के अंदर अमेजोन उसको
इमीडिएटली आइडेंटिफाई करके उसको रिजॉल्व कर देता है, देन दैट पर्टिकुलर सर्विसेज इज अगेन अवेलेबल फॉर योर कस्टमर्स। सो ये एडवांटेज होता है क्लाउड सर्विस को यूज करने का, कि मंथली बेसिस या ईयरली बेसिस का प्लान चूज करो एंड देन सर्विसेज हम लोग यूज करो, और सेम सर्विसेज हमारे कस्टमर्स को लिंक्स प्रोवाइड कर दो सो दे कैन यूज दैट वन। सो दिस इज द एडवांटेज। और अगेन अगर आप AWS के साथ डेवऑप्स पढ़ते हो तो आप क्लाउड में ऑटोमेशन कर रहे हो, डेट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सेटअप करना होता है। जैसे आपने बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया AWS के ऊपर, कस्टमर बोलता है नो, मुझे एज्योर रीजनेबल लग रहा है, अब पूरा के पूरा सर्वर उधर की उधर, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा के पूरा उधर, मुझे जल्दी से जल्दी माइग्रेट करके दो। सो अगर आप इफ यू हैव द स्किल्स ऑफ डेवऑप्स, सो आप ऑटोमेशन स्किल्स का यूज करके भी तुरंत आप AWS से डेटा को निकाल के, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को निकाल के इमीडिएटली आप कहाँ पे एज्योर के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हो कुछ टाइम में। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि 1 मिनट में या 2 मिनट में हो जाएगा, इसको टेस्टिंग इंक्लूडिंग हफ्ते भी जाते हैं, कई दिन भी लगते हैं, कई हफ्ते भी लगते हैं, डिपेंड्स ऑन व्हाट सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशंस यू हैव। बट जो काम मैन्युअली कर रहे थे उससे कई ज़्यादा फास्ट हम लोगों का ये ऑटोमेशन से हो जाता है। सो यू नो द कॉम्बिनेशन ऑफ लिनक्स, यू नो द कॉम्बिनेशन ऑफ शेल स्क्रिप्टिंग, यू नो द कॉम्बिनेशन ऑफ AWS एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ डेवऑप्स, ये चारों का कॉम्बिनेशन इंक्लूडिंग अगर आपने प्रोजेक्ट्स किया हो तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन आपको कितना अच्छा पैकेज प्रोवाइड करेगा। मार्केट में इतना डिमांड है कि अगर आप 5 लाख के पैकेज पे हो, इमेजिन करो आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स है इससे रिलेटेड, आप इंटरव्यू दे रहे हो, अगर कंपनी बोलती है कि नो आप 5 लाख का पैकेज है करंट, हम आपको 11 लाख से ज़्यादा दे नहीं सकते, और आप बोल दो ठीक है इट्स ओके, मुझे 15 से 16 लाख मिनिमम चाहिए, अगर आप नहीं दे सकते इट्स ओके, मैं दूसरा ऑर्गेनाइजेशन देख लूंगा। आपको दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे ये कंपनी खुद बोलती है कि अगर आपको 11 इन हैंड है तो हम 15 दे सकते हैं। कुछ कंपनी कुछ रहती है जो 11 से बोले कि 12 देंगे, 13 देंगे, कुछ 15, मतलब इनफैक्ट आपका जो पैकेज का ग्रोथ होता है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर वो बहुत अच्छा है। स्किल सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्किल्स बस आप इंटरव्यू दो, इंटरव्यू देने के बाद में आपको जो एडवांटेज होगा, द एडवांटेज इज लाइक कि आपका पैकेज, आपका पैसा भी अच्छा मिलता है, ग्रोथ भी अच्छा होता है करियर में भी। अब जैसे इसके अंदर आज आप सीख रहे हो तो 3 साल 4 साल तक के आपको कोई प्रोग्राम का स्किल्स नहीं लगता है, बट आप 7 7 साल 8 साल 9 साल या 10 साल के एक्सपीरियंस पे जब आ जाओगे इसी फील्ड में, एट दैट टाइम आपको कोई ना कोई लैंग्वेज, जैसे गो लैंग्वेज होगी, गो लैंग, पाइथन, ये कंपलसरी हो जाएगी। तो उस टाइम में आपको फिर धीरे धीरे खुद से ही ये सीखना पड़ेगा वन बाय वन, बट स्टिल 5 साल तक के तो कोई टेंशन ही नहीं होता है इसके अंदर। फिर जैसे वो तो ये तो IT फील्ड है, करेक्ट, आप कोई भी IT फील्ड में जाओगे यू हैव टू लर्न, लर्निंग नेवर स्टॉप। आज डेवऑप्स के लिए कोई टूल्स यूज हो रहे हैं, इन फ्यूचर वी डोंट नो कि कौन सा टूल निकल जाएगा और उसका एडवांस टूल ऐड हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टूल्स लाइक जेनकिंस अलग पढ़ रहे हैं, गिटहब अलग पढ़ रहे हैं, अभी गिट लैब ऐसा आ गया कि गिट लैब के अंदर सब कुछ हो गया आपका, आर्टिफैक्ट्री हो गया। जैसे अभी ये सब क्या होता है, जब आप कोर्स करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आर्टिफैक्ट्री क्या होता है, पाइपलाइन क्या होता है, रिपोजिटरी क्या होता है। आप डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज करने के बजाय ये सब कुछ एक ही में आ गया। तो ऐसे नए नए टूल्स इंप्लीमेंट होते रहते हैं मार्केट में जो डेवऑप्स के बेसिस पे चलते हैं। तो ये चीज आपको कोडेयर एकेडमी से अगर आप पढ़ते हो मान लो, तो इसके अलावा हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवाते हैं। आपको ये लिनक्स प्लस शेल स्क्रिप्टिंग, AWS और डेवऑप्स ये पूरा पैकेज सिखाया जाता है। वी नेवर टीच यू AWS एंड डेवऑप्स डायरेक्टली बिकॉज वी नो कि हम लोगों के पास जो कैंडिडेट्स आते हैं काफ़ी नॉन IT बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनको IT के, उनको ऐसा लगता है कि लाइक के हम लोग जो IT का कोर्स कर रहे हैं वो काफ़ी एडवांस है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। काफ़ी टाइम वो लोग दे आर आस्किंग so many times this basic questions कि it is possible or not directly to start this course। so इसलिए we will start the course from basic from Linux and shell scripting and then we will teach you the AWS and DevOps। again इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है इसके बेसिस पे, what is the questions they will ask you। लेट्स से अगर आप फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ओके, तो वो आपको कुछ क्वेश्चन लिनक्स से स्टार्ट करेगा। जैसे आपको जैसे जैसे अभी मैंने बताया कि पैकेज का अपग्रेडेशन रिक्वायरमेंट होता है, कभी कभी कोई टूल स्टक हो गया तो आपको एरर से दिख जाता है, लॉग फाइल कौन से होते हैं, कैसे चेक करेंगे, पैकेज को अपग्रेड कैसे करते हो तुम लोग,
कैसे कर सकते हैं, कर्नल का वर्जन कैसे चेक, फ्यू ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस वो लिनक्स पे पहले पूछेगा। फिर फ्यू क्वेश्चंस आपको शेल स्क्रिप्टिंग पे पूछेगा कि आपको कोई स्क्रिप्टिंग का नॉलेज है क्या। अगर आप बोलोगे हाँ मुझे पाइथन स्क्रिप्टिंग का है, तो आपको पाइथन स्क्रिप्टिंग पे पूछेगा। इफ यू से कि मुझे शेल स्क्रिप्टिंग का नॉलेज है, देन दे ही विल आस्क यू द क्वेश्चंस ऑन शेल स्क्रिप्टिंग। he will give you some sort of basic script code, so you have to solve it। okay, so इससे बेसिस काफी डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता है, काफी कुछ इजी है। ओके, देन ही कैन स्टार्ट फ्रॉम AWS। so AWS से आपको जैसे इंश्योरेंस कैसे लॉन्च करना होता है, VPC क्या होता है, तो ये बेसिक से सॉरी इन क्वेश्चन आंसर से वो स्टार्ट करना शुरू करेगा कि आपको कितना नॉलेज है। इंटरव्यूअर नेवर आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन इज डीप क्वेश्चन। पहले वो ऊपर का क्वेश्चन पूछेगा एकदम हल्का हल्का हल्का, फिर धीरे 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 डीप में जाता है। ओके, डीप में जाता है, दैट डजंट मीन कि वो काफी डीप में चला गया। आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 2 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस इज इक्वल्स टू फ्रेशर। आपको इतना डीप में कभी काम मिलता ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर आप 2 या 3 साल पे होते हो, आपको आपको वही चीज हाथ में मिलती है। हाँ, अगर आप छोटी कंपनी में काम कर रहे हो, स्टार्टअप हो या मिड लेवल हो, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको काफी डीप में काम करने को मिलेगा। मैंने अपना करियर एक नॉन MNC कंपनी से स्टार्ट किया था। वाई? बिकॉज आई नो कि डेवॉप्स के अंदर मैं अगर MNC कंपनी में काम करूंगा, सो 8 साल 9 साल या 7 साल के एक्सपीरियंस के बिना वो मुझे सीखने जैसा काम डीप में नहीं देंगे। इसलिए मेरा सजेशन आप लोगों से यही रहेगा कि अगर आपको आप लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू और करियर में ग्रोथ चाहते हो, तो आप एक नॉन MNC से स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ स्टार्टअप आपको 5 या 10 हजार देगा। मैं वैसे स्टार्टअप ये फील्ड में इतना कोई दे ही नहीं सकता, इतना कम कोई देता ही नहीं, क्योंकि इसके लिए जो स्किल सेट लगता है और जो आपके पास आपके रिज्यूमे में आप शो कर रहे हो या आपके पास जो भी स्किल सेट है वो काफी हाई होता है। कोई भी इतने कम पैसे में इस ये फील्ड में काम कर ही नहीं सकता है, फर्स्ट थिंग। सो स्टार्टअप हो या मिड लेवल हो, दैट ऑर्गेनाइजेशन विल आल्सो पे यू अ गुड सैलरी। ओके, अच्छा खासा ही पैकेज देती है वो भी, ऐसा नहीं देती है। तो आप स्टार्ट करते हो करियर अपना उसमें, तो आपको जैसे यू से कि हाँ मुझे आई नो AWS एंड डेवॉप्स, तो कुछ स्टार्टअप या मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशन काफी अच्छा हेवी काम आपको उससे रिलेटेड दे देंगे। हेवी काम मतलब डिफिकल्ट होगा ये नहीं कह रहा हूँ मैं, हेवी मतलब सीखने जैसा होगा कि आपको डीप में आपको समझ में आ जाएगा, अरे यार कि मैंने कोर्स में ये पढ़ा था, हाँ इसका रियल टाइम यूज तो यहाँ हो रहा है, मुझे यहाँ पता चल रहा है। फिर जैसे इन फ्यूचर आप नॉन MNC से जब बड़ी MNC कंपनी में जाते हो एक्सपीरियंस शो करके, यस आई हैव 5 years 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डेवॉप्स, वही काम सेम काम आपको फिर MNC देती है। तो आपको अगर करियर में जल्दी ग्रोथ चाहिए, तो माय सजेशन इज यू हैव टू स्टार्ट करियर फ्रॉम दी नॉन MNC, ताकि आपको डीप में काम मिले। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल में अभी भी लोग हैं जो सिर्फ अच्छा काम करने के लिए वो अभी तक MNC में करते नहीं, नॉन MNC में अच्छे पैकेज पर है, 30 30 40 40 लैक्स के पैकेज पर होने के बाद है उनका पैकेज है, बट स्टिल वो एक स्टार्टअप या मिड लेवल कंपनी में काम कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको इससे रिलेटेड फ्रॉम स्क्रैच मतलब डेवॉप्स फ्रॉम स्क्रैच, AWS फ्रॉम स्क्रैच से उनको काम मिलता है कि स्क्रैच से पूरा सेटअप करके एकदम कॉम्प्लेक्स लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बिल्ड करना है, या कॉम्प्लेक्स लेवल के एप्लीकेशंस को कैसे बिल्ड करना होता है, कस्टमर्स को कैसे डायरेक्टली फेस करना होता है, उनके इश्यूज आते हैं तो हाउ वी कैन रिजॉल्व द इश्यूज इन अ गिवन टाइम। कस्टमर से इसके 10 मिनट में मेरा इश्यूज रिजॉल्व करके दो, सो 10 मिनट्स का ड्यूरेशन कैसे उसने काउंट किया, हाउ यू कैन काउंटर, आप ये कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, एवरीथिंग यू विल बी अंडरस्टैंड वंस यू गेट द जॉब। ओके, सो कोर्स करने के लिए आपको इम्पोर्टेंट क्या होता है, लाइक इंटरव्यू क्रैक करना। करेक्ट, इंटरव्यू क्रैक इज, हम लोग ये कोर्स करते क्यों है, व्हाई वी आर डूइंग द कोर्स। ओके, अगर कोर्स के बिना मैं जॉब कर सकता हूँ, मैं तो 1 2 महीने में देख देख के सीख ही जाऊंगा, फिर देन व्हाई। तो इंटरव्यू इज द फर्स्ट पॉइंट जिसको हम लोगों को निकालने के लिए ये कोर्सेज करना कंपलसरी होता है। एक बार कोर्सेज कुछ कंपनी सर्टिफिकेट चाहती है, सर्टिफाइड होना चाहिए, लाइक AWS सर्टिफाइड लेट्स से। So if you have the certification, if you have the knowledge of this particular courses, then organization is definitely hire you, and candidates आज की डेट में इतने हैं ही नहीं कि जिनको डेवॉप्स का भी स्किल्स हो, AWS का भी स्किल्स हो और लिनक्स में भी मास्टर हो। ओके, क्योंकि जो काफी जो नए कैंडिडेट्स है वो डायरेक्टली लिनक्स सीखते नहीं है, दे वांट कि
आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम टू स्टार्ट लिनक्स, बट जब ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं उनको तब समझ में आता है कि लिनक्स कितना इंपॉर्टेंट होता है। फिर वो ढूंढ ढूंढ के यूडेमी पे वीडियोस देखते हैं कि लिनक्स कैसे करे, फिर वहाँ पे भी समझ नहीं आता है बराबर। फिर वो लिनक्स के कोर्सेज के लिए अप्लाई करते। काफ़ी कुछ है मेरे पास जो डेवॉप्स में काम करके भी लिनक्स के लिए मेरे पास में इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं कि लिनक्स, सिर्फ लिनक्स हमको सिखाओगे क्या? हम लोग तो डेवॉप्स पे काम ऑलरेडी कर ही रहे हैं बराबर है। सो लिनक्स इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो बेस। आपको पता है कि बिल्डिंग बनाने के लिए बेस का रिक्वायरमेंट होता है। बेस जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा बिल्डिंग बनेगा, उतना स्ट्रांग बनेगा बराबर है। सो लिनक्स एंड शेल स्क्रिप्टिंग इज जस्ट लाइक योर बेस। If your base is very strong, then AWS and DevOps is somewhat very easy for you. Correct? Very easy for you to understand. Okay, so इसमें आपको फिलहाल कोई questions, if you have any doubt you or any questions you can ask me. और एक्सपीरियंस पे अगर आप इंटरव्यू दोगे इसमें, तो एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पूछा जाता है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में कौन से टूल्स को यूज़ किया था, कैसे काम करते थे। लेट से अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, AWS की बात कर रहे हो, तो वो आपको पूछेगा कि आपका नेटवर्क कैसे काम, वहाँ पे मतलब VPC होता है, VPC सर्विस। तो VPC सर्विस आप कैसे मैनेज करते थे, VPC में सिक्योरिटी कैसे देखते थे, एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन की सिक्योरिटी कैसी थी, प्लस आपके कितने एप्लीकेशन एट ए टाइम चलते थे, क्या क्या आपको इश्यूज आते थे और आप खुद से इनिशिएटिव लेके उसको कैसे रिजॉल्व करते थे। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एक्सपीरियंस पर्सन्स को डेवऑप्स और क्लाउड पे पूछे जाते हैं। ओके, वो आपको डेवलपमेंट की तरह ऐसे ऐसा नहीं कहा जाएगा कि चलो XYZ फंक्शन का मेरे को कोड लिख के बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स भी होते नहीं है इसके अंदर। जो भी होता है टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर आपका वर्किंग के ऊपर होता है कि आपने कैसे काम किया है। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको कौन से सर्विसेज के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, उसके बेसिस पे होता है इंटरव्यू क्रैक करना डेवऑप्स एंड AWS के लिए। अगर आपको समझ में आ गया ये सब चीज़ तो आप ये बहुत ज़्यादा इजी होगा। करेक्ट है। सो इट्स माय पर्सनल चॉइस कि आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आपको काफ़ी कुछ आगे फ्यूचर में एडवांटेज है। आई एम फ्रॉम कोडर एकेडमी। सो बेसिकली हम लोग ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं और हम लोग के पास में काफ़ी रिजनेबल रेट्स में भी ये कोर्स है। अदर देन दैट वी हैव नियर अबाउट 10 कोर्सेज। क्योंकि कोई कहता है कि हाँ मुझे सिर्फ डेवलपमेंट के अंदर मुझे कोडिंग का बहुत इंटरेस्ट, मैं कोडिंग में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मुझे कोडिंग छोड़ के किधर जाना ही नहीं है। तो कोडिंग के लिए प्योर पाइथन डेवलपमेंट हो गया या प्योर जावा डेवलपमेंट हो गया, या किसी को वेब डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा स्किल्स इंटरेस्ट रहता है कि मैं फ्रंट एंड में बहुत अच्छा डिज़ाइन कर लूँ, किसी को इंटरेस्ट होता है कि मैं रोबोटिक्स में जाऊँ, डेटा साइंस में जाऊँ, तो हम लोगों के पास में ऐसे टोटल 10 कोर्सेस है अवेलेबल है। तो आप अगर किसी कोर्स में हम लोगों के पास से करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो हम लोग आपको वैसे ही कनेक्ट करेंगे। आप जस्ट आपका या फिर आप हम लोगों से कोडर एकेडमी से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप वेबसाइट विजिट करोगे www.coderacademy.com तो आपको यहाँ पे हम लोगों का कोर्सेज के डिटेल्स दिख जाएंगे। आपको कोर्सेज के डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएंगे कि हम लोग कौन से कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ये देखो, लेट मी चेक माय, आई थिंक मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है। ये देखो, AWS DevOps, Azure एंड GCP, Red Hat कोर्सेज, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, पावर BI, सेल्स फोर्स, ये सारे के सारे कोर्सेज हम लोगों के पास में अवेलेबल है। इसके अलावा फुल स्टैक डेवलपमेंट, जावा डेवलपमेंट पे हम लोगों ने काफ़ी टाइम हो गया स्टार्ट किया है, हम लोग ये सब भी लेते हैं। अदर देन दैट हम लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी लेते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन आस्क अस दैट वी हैव अ फ्यू प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव सम कैंडिडेट्स। सो आप इन लोगों को आप इन लोगों को कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर दो सो दैट दे कैन इजीली start working on that particular project. In fact, we have our own set of interview question and answers हम लोगों की वेबसाइट पे ही है, जिसमें आप यू कैन सी दैट कि आप लोगों को इसके अंदर
मल्टीपल टेक्नोलॉजी पर नियर अबाउट 32 टेक्नोलॉजीज के ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स यहाँ पे मिलते हैं codeareacademy.com interview.html के ऊपर। ओके, देन इसके अलावा हम लोगों के पास में और भी बहुत कुछ है, जैसे लेट्स से कि डेली बेसिस पे जो भी ट्रेनिंग होता है, दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन इज गेटिंग रिकॉर्डेड एंड दैट रिकॉर्डेड सेशन, अगर आप एनरोल कैंडिडेट्स हो तो एनरोल कैंडिडेट्स के लिए वो सेशन कम्प्लीटली हम लोग फ्री रखते हैं 6 मंथ्स तक। ये देखो ऐसे, जैसे अभी टेस्टिंग का कुछ टाइम अब मैंने बंद कर दिया है टेस्टिंग, बट टेस्टिंग के पहले मेरा अभी AWS एंड DevOps, सो अगर आप सिर्फ रिकॉर्डेड सेशन देखते हो तो मेरा रिकॉर्डेड सेशन है 25,000 का, सिर्फ रिकॉर्डेड सेशन। ओके, बिकॉज इसमें फ्रॉम स्क्रैच से लिनक्स शेल स्क्रिप्टिंग AWS DevOps पता है, बट जो कैंडिडेट हमारे पास एनरोल करते हैं उन लोगों के लिए हम लोग ये ट्रेनिंग से उन लोगों को ये सेट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिकॉर्डेड सेशन सिखाना अलग, प्रोजेक्ट्स करवाना अलग, प्लस ये रिकॉर्डेड सेशन अलग, ये तीनों भी हम लोग फ्री में करते हैं। मतलब इफ यू आर डूइंग द कोर्स ऑफ AWS एंड DevOps, सो यू विल गेट लिनक्स शेल स्क्रिप्टिंग प्लस 3 प्रोजेक्ट्स प्लस दिस रिकॉर्डेड सेशन प्लस रेज्यूमे प्रिपरेशन प्लस मॉक इंटरव्यूज, ये सब के सब आपको हम लोग प्रोवाइड करते हैं इन फ्री ऑफ कॉस्ट इफ यू आर एनरोल फॉर दिस AWS एंड DevOps कोर्स। ओके, सो ये हम लोगों का इंटरनल पोर्टल है जिसमें आप रिकॉर्डिंग सेशन देखते हो, कोर्सेज रहते हैं, हम लोगों के पास इंडिविजुअल एक्सेस होते हैं, हम वी हैव अवर ओन सेट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये तो टोटली फ्री है हर किसी के लिए, सो यू कैन इवन कीप विथ अस, यू कैन शेयर विद दिस विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऑनलाइन वीडियोज भी हैं हम लोगों के, सो ऑनलाइन वीडियोज में भी अभी कमिंग सून है, साइट इज अंडर डेवलपमेंट, सो काफ़ी कुछ जो फ्री रिकॉर्डेड सेशन है या वो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पेस्ट करेंगे, अपलोड करेंगे। लेट्स से कि अगर जैसे किसी को कुछ AWS का कुछ कस्टमाइज एक्टिविटी होता है, क्लाउड का, डेवॉप्स का, या और कोई भी टेक्नोलॉजी का, हम लोगों के पास जितनी भी टेक्नोलॉजीज है उससे रिलेटेड कोई भी बेसिक रिकॉर्ड उससे कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस होता है तो वो भी हम लोग का क्या करेंगे यहाँ पे अपलोड। दैट मीन्स आपको नोट्स, डेटा एज वेल एज आपको यहाँ पे सब कुछ वीडियोस या फ्री वीडियो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो काफ़ी डेटा हम लोग काफ़ी कुछ प्रोवाइड करके देते हैं। हम लोगों का खुद का एक यूट्यूब पे चैनल भी है, आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कोडेयर एकेडमी पुणे। ओके, इस चैनल पे हम लोग अभी धीरे धीरे काफ़ी सारे वीडियोस हम लोगों ने बनाए हैं। सो अभी ये वीडियोस को अभी स्टार्ट किया है यूट्यूब के ऊपर, ये सारे के सारे वीडियोस को अपलोड करना है। तो ये कोर्सेज के सारे वीडियोस हम लोग क्या करने वाले, इधर अपलोड करने वाले। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिससे आप नहीं कुछ तो कम से कम यहाँ पे कुछ सेशंस के, नॉट सेशंस बट कुछ टेक्नोलॉजी के फ्री वीडियोस देख सकते हो। जैसे कोई अगर लिनक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सिर्फ लिनक्स का स्किल्स है उसके पास, या और वो कुछ एडवांस चाहता है, तो लिनक्स के अंदर पर्टिकुलर एक्टिविटी कैसे करते हैं उसका रिकॉर्डेड सेशन मैंने वहाँ पे डाल दिया, तो आप वो भी देख सकते हो। तो हम लोग ये सब चीज़ें सबके साथ में शेयर करते हैं, करेक्ट। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, यू कैन आस्क। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, पूछ सकते हो।